Good morning, students. So, beta, today we are going to start with our next problem from the sheet, that is question number 10. And children, this problem has appeared in year 2009 board examination. Okay, and so now on we will uh, attempt many problem from the board examination. So, children, it is the first one. So now look at the problem itself, and when you will go through the problem, so then children, you will find that this problem is all about to find out the transposing of a matrix. Okay, and you have to perform this job by using two matrices in form of the object of given class. Okay, so now look at the problem. The class is given as trans array, and then three data members are there: ARR, M and N. M and N are the number of rows and number of column. Okay, and then the five methods are given: trans array, it is a default constructor; then trans array integer double m double n to initialize the size of the matrix and to create the matrix; then void fill array, void transpose, which accept an object and find the transpose of the given matrix and to print the matrix. Okay, children, so these are all the methods which we have to use in this class. After, okay, so we are just starting with the problem itself. Okay, so now look at the answer, children. The name of the class is given as trans array. ठीक है, then integer ARR, here I should be in small, integer ARR and M and N. Okay, three data members are declared. Then the first method is a default constructor trans array, which accepts two parameters in form of double m and double n, and these values are stored into m and n, which are the data members, and they also represent the number of row and number of column. Children, see that this problem is from the board examination. Okay, and you know that when you are transposing a matrix, it should be a square matrix only. Okay, means number of rows and number of columns will be equal. But only to confuse the children, there are two different data members are given. Okay, for m and n to represent rows and column. Otherwise, all of you know that when you are going to find the transpose of a matrix, both should be equal. So what it means ki if they have given us a single data member also, then this also this program was possible. Okay, so now look at the next program, sorry, the next method, that is void fill array. Okay, in the fill array, children, you know that you will run the loop of x and y or r and c. Means you know that the first loop is for row and second loop is for column. Okay, so you will run both the loops, and after that you will take the input of the array ARR. Okay, children, so it is your first and the elementary part. After that, children, we look at the next part. Okay, there is one more method is given that will print the matrix ARR, and then the fourth method is, sorry, the last method is given void transpose trans array b. Okay, if it is the method which performs the job by taking an object of the class trans array. Okay, so now we move to the void main section and see that how this program will perform. Okay, so now children, look at the first line of the main. In the first line, children, it is told trans array a equal to new trans array 3 comma 3. Okay, children, so we are means creating an object. The name of the object is a. Okay, and new trans array 3 by 3. So we pass the two values 3 by 3. So you know that this constructor will get activated. Okay, it will take two values 3 and 3 in double m and double n, and these two parameter will copy their value into m and n. Okay, and after that we will create the memory, allocate the memory for the matrix ARR. Okay, so ARR equal to new integer m एंड यानी 3 तो बेटा 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी ए के नाम से.
कैसे क्रिएट होगी यहाँ पे चेक करते हैं। तो तुरंत बेटा यहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट हो गई। ठीक है, 3x3 की एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम होगा, ए होगा। ठीक है, और ए के अंदर ये क्या है आपका, ARR। ठीक, इसके बाद हमने कहा ट्रांस एरे बी इक्वल टू न्यू ट्रांस एरे 3x3। आपको पता है क्या होगा, फिर एक 3x3 की मेमोरी यहाँ क्रिएट होगी। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम होगा, बी, और बी के अंदर भी एक ARR होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी इसके ARR में ये तीन चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आपने क्या बोला, ए डॉट फिल एरे। फिल एरे कौन सा, वही आपका जो सेकंड वाला मेथड था, सेकंड मेथड फिल एरे। और ये क्या करेगा बेटा, एक्स और वाई के लूप चलाएगा और ARR XY इक्वल टू एच डॉट नेक्स्ट INT। और ये आपसे क्या करेगा, यूज़र में 0 से 2 के लूप एग्जीक्यूट करेगा एंड इट विल टेक द इनपुट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, सो यू नो दैट फॉर द फर्स्ट टाइम द मेथड विल रन फॉर ए, है ना, आपने बोला ए डॉट फिल एरे। तो ये क्या हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, ए में कुछ यूज़र से एंट्री ले ली, 2 4 6 8 10 लाइक दिस। ठीक है, और ये बेटा इसके रो एंड कॉलम के इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो ऐसे बेटा आपका यहाँ पे एक ए वाला मैट्रिक्स फिल हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है पता है ना, कि ए के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके बी वाले ऑब्जेक्ट के ARR में स्टोर करना है। एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसपोजिंग द मैट्रिक्स। ओके, ऑल द वैल्यूज ऑफ रो विल कन्वर्ट टू द कॉलम इनटू अनदर मैट्रिक्स। ओके, और कॉलम की वैल्यू रो में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो रो की वैल्यू कॉलम में, कॉलम की वैल्यू रो में करनी है। लॉजिक आपको पता है, आपने 11th में ये प्रॉब्लम की हुई है। ठीक है, कि बस खाली करना क्या होता है आपको, RC की जगह CR, या अगर आप XY लिख रहे हैं तो XY की जगह YX हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने के लिए जो मेथड हमको दिया गया है वो कौन सा है बेटा, ये है यहाँ पे void ट्रांसपोज ट्रांसपोज B। ओके, means the method accepts an object of the class trans array, okay, and see in the problem what is told कि that to find the transpose of a given matrix। तो कैसे करना है इसको देखते हैं हम लोग। तो ये लाइन देखिए यहाँ पे क्या लिखी है, ए डॉट ट्रांसपोज बी। ठीक है, ए डॉट ट्रांसपोज बी मीन्स कि बेटा हम ए से ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, यानी जो ट्रांसपोज वाला मेथड है दैट विल रन इनसाइड द बॉडी ऑफ ट्रांसपोज ओनली। ठीक है, तो ए को बनाया करेंट ऑब्जेक्ट और हमने इसके अंदर बी को पास कर दिया। ठीक है, और ये बी जो यहाँ पे आएगा कौन से नाम से आएगा, बी के नाम से ही आएगा, और बी के पास कौन सा डेटा मेंबर है, ARR। ठीक है, तो अब आ जाइए अंदर। तो बेटा मैंने अब ध्यान रखिएगा कि ये मेथड जो है ए की बॉडी में चल रहा है। तो मैंने कहा फॉर x इक्वल टू 0 x इज लेस देन m x प्लस प्लस। तो पहला लूप आपको पता है रो का होता है, तो ये रो के लिए चलेगा। देन द सेकेंड लूप इज ऑफ y दैट विल रन फॉर कॉलम। ठीक है, तो पहले हमने रो एंड कॉलम के लूप चला दिए और इसके बाद फिर देखिए ध्यान से मैंने क्या कहा, b डॉट ARR XY। तो आपको पता है पहली बार x की वैल्यू तो बेटा 0 है और y का लूप चलेगा 0 से लेके 2 तक, यानी 0 1 एंड 2। ठीक है, और x तीनों बार क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि वो बाहर के लूप की वैल्यू है, यानी 0 0 0 1 0 2। ठीक है, मैं आपको वैल्यू कौन सी डालनी है, ARR YX। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, खाली यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे XY में X रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, Y कॉलम को। लेकिन जब आप इधर राइट हैंड साइड पे जाओगे तो हमने क्या किया है, X और Y की पोजीशन इंटरचेंज कर दी है, यानी कॉलम पहले कर दिया है और रो को बाद में कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू है वो इस साइड रो पे जाएगी और जो रो की वैल्यू है वो कॉलम पे जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जब 3 बार लूप चलेगा, XY क्या है आपका 0 0 0 1 0 2, पर यहाँ पे क्या हो गया है YX, यानी कि 0 0 1 0
एंड 2 0। तो अब देखिए क्या होगा, पहली बार 0 0 में 0 0 की वैल्यू, यानी कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है ARR, ये कहाँ का ARR है बेटा, ए वाला, यानी करंट ऑब्जेक्ट का, और ये बी डॉट ARR यानी कि जो आर्गुमेंट आया है बी का। तो ये देखिए 0 0 में 0 0 की वैल्यू जाएगी, फिर 0 1 में 1 0 की वैल्यू, ये देखिए ये है मेरा 0 1, और यहाँ पे 1 0 की वैल्यू आएगी यानी 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 0 पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी बार 0 2 पे 2 0 की वैल्यू, ये है 0 2, और यहाँ पे 2 0 की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो ये देखिए ऐसे बेटा एक राउंड ओवर हो जाएगा, और एक राउंड के बाद आप क्या देखते हो कि ए का जो ARR है इसके फर्स्ट कॉलम की वैल्यू बी के फर्स्ट रो में आ जाएंगी। देखिए यहाँ था 2 8 18, ये हो जाएगा 2 8 18, तो फर्स्ट कॉलम विल कन्वर्ट टू फर्स्ट रो। ऐसे ही फिर जब अगली बार आगे जाओगे, बाहर का लूप चलेगा x प्लस प्लस। अब बेटा ये सारी जो x की वैल्यू है कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा अब यहाँ पे 1 0 1 1 और 1 2, ये है देखिए 1 0 1 1 एंड 1 2, बी के 1 0 1 1 एंड 1 2 में ARR के 0 1 1 1 और 2 1 की वैल्यू। तो ये देखिए 0 1 1 1 एंड 2 1, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं 4 10 एंड 20, ठीक है, ये आपकी सेकंड कॉलम की वैल्यू सेकंड रो में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और फाइनली x प्लस प्लस एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी ये हो जाएगा 2 0 2 1 2 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 2 1 2 एंड 2 2। तो 2 0 की वैल्यू 0 2 में, तो ये देखिए जी, ठीक है, 0 2 की वैल्यू 2 0 में, यानी कि ये जो 6 है ये आपका इधर आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे 12 एंड 22, ठीक है, तो 12 एंड 22 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए ऐसे बेटा क्या हुआ, आपके पूरा ए का जो एरे था ये मैट्रिक्स सॉरी ट्रांसपोज होके बी के ARR में स्टोर हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये मेथड आपका ओवर हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल करिए बी के थ्रू, और ये फंक्शन कॉल होगा और बी की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। तो ये आपका 2 8 18, ठीक है, 4 10 एंड 20 एंड 6 12 एंड 22, ऐसे आपका ये ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। बोर्ड में देखिए प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं होती हैं, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम होती हैं, तो इनको बहुत आराम से अच्छे से ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए ओके, फिर हम लोग मिलते हैं कल, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं बोर्ड की।